Welcome students, this is the class 9th and the subject is political science. Today we are going to complete the chapter number 3, electoral politics. Actually students, half of the chapter we already have done in the previous video. So I am just giving a preview what we already have done. Chapter number 3, see the name of the chapter, this is electoral politics. In this electoral politics, we already have completed these few pages. See here on the pages of the book. This is your NCERT book. Overview we already have done. The meaning, why do we need the elections, what the meaning of the election, and here was the example of a assembly election of Haryana. Okay student, till that we already have done this topic. Then the next page, we had completed importance of the elections. Then see the activity, why do we need the election, different needs. I have marked the question here, you should mark the same points on your book. Students, whatever we have marked here on the book, you also can use this matter for answers. Okay, this is a very accurate material for your answer. So next we have done the things or the condition which makes the election democratic. For example, equal votes, free and fair elections, okay, and people must have the choice. So all these topics we had completed in the previous video. Then we had studied the topic, is it good to have the political competition? Yes, we had given some positive arguments as well as we had some negative arguments. So next topic we had done, that is levels of the election. For example, Lok Sabha election, assembly election, local elections. Now we will complete the full chapter in this video. Okay, the major important topics are, see the next page till the constituency we already have done. Now we will see what are the major stages of the election. You also can say what are the major steps during the election, especially in India. Okay, so let's students start the topic of the day. Half of the chapter we already have done. Now we are going to do the next chapter which was pending. Okay, so today's topic is what are the major stages of the elections in India. First of all, when the elections are declared, then the very first requirement is voter list. जब भी हमारी इलेक्शंस होती हैं तो पहले क्या बनती हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी वोटर लिस्ट रेडी होती है. एलिजिबल कौन है? एलिजिबल मीन्स वन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग द एज ऑफ 18 or above 18 years. Okay, so I marked here what is the voter list. This is the 1 mark question for you. The list of those who are eligible to vote is prepared much before the elections and given to everyone. This list is officially called electoral roll and commonly known as the voter list. Okay students, this list is having two names, electoral roll as well as it is also known as voter list. Then keep the name in mind. What is electoral roll? This is also known as voter list. In this list all the name of the eligible voters are mentioned. Then these voters, those who are having the eligibility to cast the vote, they are having the right to vote. This right to vote is also known as universal adult franchise. Universal adult franchise, this is also a 1 mark question. It is a practice, it means that everyone means the citizen of India, everyone should have one vote and each vote should have an equal value and no one should be denied to write the vote without any reason. So this is the universal adult franchise. Now students, see the next topic. See students, we are having one more option for the voters. There is a EPIC card. EPIC means election photo identity card. Actually in the last few years the new system of EPIC has been introduced. जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हमारे वोटर्स के लिए एक नया EPIC कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू है, जिसके ऊपर वोटर्स
की उनकी फ़ोटो और उनका एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया एक प्रूफ बना होता है। सो वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे आर गोइंग टू कास्ट देयर वोट। जब भी वो वोट देने जाते हैं तो ये कार्ड उनके पास होना चाहिए। बट अगर इन केस किसी के पास से एमपी कार्ड नहीं मिला हुआ है, देन द वोटर्स दे ऑल्सो कैन टेक एनी अदर प्रूफ फॉर द आइडेंटिटी। कोई और प्रूफ लेके जा सकते हैं, जैसे राशन कार्ड या उनका ड्राइविंग लाइसेंस। नाउ स्टूडेंट्स मूव फॉरवर्ड। अगले पे आपका नेक्स्ट पेज का टॉपिक है आपका कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो एक कैंडिडेट को नॉमिनेशन फिल करने के लिए चाहिए। जो भी कैंडिडेट अपनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के विलिंग है, जो इलेक्शन चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये आपकी बुक में डिफरेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके नेम वगैरह उनकी डिटेल सब मेंशन है। तो उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। ये मिजोरम का था जो मैं आपको बुक पे दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले उनको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। जिसका नॉमिनेशन फॉर्म अप्रूव हो जाता है उसको बोलते हैं पार्टीज नॉमिनेशन इज गिवन। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में टिकट भी बोलते हैं कि पार्टी का टिकट मिल गया पर्सन को। तो उस पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए? द कैंडिडेट शुड हैविंग द एज ऑफ 25 ईयर्स वन हु इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। लेकिन वोटर्स के लिए ये एज कितनी है? सिर्फ 18 ईयर्स। तो ये आपने फिगर लर्न रखना है। सो माई क्वेश्चन इज देयर, what is the minimum age for the candidates those who are contesting the election, and what is the minimum age for the voters those who are cast the votes, those who are going to cast the votes? So students, those who have heard the chapter very carefully, give the answer immediately, give the answer in the comment box. So I will judge how many are alert here and how many are not listening to me. So again I am suggesting you to repeatedly watch the video to clear the concepts. जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इजी हैं। वंस यू शुड गो थ्रू द रीडिंग ऑन द बुक बाय योरसेल्फ एंड ऑल्सो रिपीटेडली वॉच द वीडियो। अब हमारे कैंडिडेट्स हैं जितने भी नॉमिनेशन के लिए अपना नेम फिल करते हैं, उनके लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है जो भी कैंडिडेट जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोट कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक लीगल डिक्लेरेशन है। मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर रखा है। See it very carefully and you also are needed to mark this information in your book. जितना भी मैंने यहाँ important मार्क किया बेटा, आप सब ने अपनी बुक्स पे मार्क कर लेना है, because it will make easy when you are going to having the revision in the during the exam days. You need not to go through the whole chapter. You just read these important tips. Okay. So ये आपका 3 marks का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। What are the declaration given by the Supreme Court for the candidates? Okay. Recently, a new system of declaration has been introduced on the direction of Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration. उसकी full detail उसको देनी पड़ेगी। कौन सी डिटेल? Serious criminal case pending against him in the court. अगर उस कैंडिडेट के अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। डिटेल ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज, जो भी उसके पास सामान है, बड़ा सामान है, उसकी प्रॉपर्टी है, सबकी उसको एक डिटेल बना के देनी पड़ेगी। जो उसकी फैमिली है उनकी प्रॉपर्टी, ये सारी। उसके बाद उसको अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। ये पब्लिकली देनी है, इसको प्राइवेट नहीं रखना, ओपन करना है। सो मे दैट पीपल दोज हू आर गोइंग टू कास्ट द वोट टू दैट पर्सन, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ दैट पर्सन। तो इससे लोगों को एक अवेयरनेस मिलती है, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस इज द डिक्लेरेशंस और सजेशंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये सबके लिए कंपलसरी है जो इलेक्शन में अपनी नॉमिनेशन फिल करनी है, और जिसको नॉमिनेशन मिल जाती है उसको बोलते हैं पार्टी टिकट इज अप्रूव्ड। तो अब ये मैंने आपको डिटेल पहले दिखाई है, ये कैंडिडेट की डिटेल है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के हमारी जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, नॉमिनेशन होगी, वोटर लिस्ट बन गई। अब उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फ्री डिस्कशन करनी है, अपने वोटर्स को मिलना है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। ये हमारी थर्ड स्टेज है। इलेक्शन की थर्ड स्टेज होगी इलेक्शन कैंपेन। फर्स्ट स्टेज क्या थी? प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल भी बोलते हैं उसको। सेकेंड, फिलिंग द नॉमिनेशन। इस ड्यूरिंग नॉमिनेशन फिल भी कर सकते हो, नॉमिनेशन को वापस भी ले सकते हैं विद इन 15 डेज। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन क्या है? एक फ्री एंड ओपन डिस्कशन है, ताकि वो अपने वोटर के साथ ओपनली बात करें, उनको
इम्प्रेस करें, कन्विंस करें उनको वोट डालने के लिए। तो ये टाइम पीरियड कब होता है? इलेक्शन कैंपेन। सी हियर आई मार्क द थिंग हियर, सी द कर्सर। ये कैंपेन जो होती है मतलब रैलीज होती हैं, दे टेक प्लेस फॉर 2 वीक पीरियड। सिर्फ ये 2 वीक का पीरियड होता है इलेक्शन से, जिस दिन उनकी वोटिंग होनी है उस दिन तक, जब डेट डिक्लेयर हुई, डेट डिक्लेरेशन से लेकर जिस दिन पोलिंग होनी है तब तक का जो बीच का पीरियड है 15 दिन का पीरियड उनको मिलता है इलेक्शंस पे कैंपेन करके अपने कैंडिडेट्स को अपनी फेवर में करना है। तो इस पीरियड में वो रैलीज निकालते हैं उसमें उनको अपने जो वोटर्स हैं, उनके नॉन पर्सन हैं, डिफरेंट एरियाज में जाके उनको पर्सनली स्पीच देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके साथ वादे करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे? इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा होगा जो रैलीज जाती हैं इलेक्शन के ड्यूरिंग, वो ज़्यादातर स्लोगन्स बोलती हैं, नारे बोलती हैं। तो अब तक के जो इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं, जो बड़ी पार्टीज ने इम्पोर्टेंट स्लोगन यूज़ किए, वो कौन से हैं? तो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी ने 1971 में एक स्लोगन दिया था, बहुत फेमस हुआ था स्लोगन, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। तो ये स्लोगन किसका हो गया? कांग्रेस पार्टी का, ईयर 1971। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पे अटेंशन हियर एंड मार्क द सेम इंफॉर्मेशन इन द एनसीईआरटी बुक। दूसरा स्लोगन है सेव डेमोक्रेसी। ये स्लोगन इट वाज गिवन बाय जनता पार्टी और उनका लीडर था जयप्रकाश नारायण। लोकसभा की इलेक्शन जो 1977 में हुई थी इंदिरा गांधी के बाद, उन्होंने जो इलेक्शंस में स्लोगन रखा था दैट इज सेव डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट पार्टी जिसका इंपॉर्टेंट स्लोगन है लैंड टू द टिलर। वेस्ट बंगाल में ये असेंबली इलेक्शन में बहुत फेमस स्लोगन था कि जो लोग वर्क कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं बट उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, वो फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं। तो स्लोगन था पार्टी का कि जो उनकी पार्टी को वोट देगा, पार्टी का नेम क्या है? लेफ्ट फ्रंट। तो जो भी पार्टी को सपोर्ट करेगा वो लैंडलेस फार्मर की हेल्प करेंगे और उनका स्लोगन क्या था? लैंड टू द टिलर। ये अपने स्लोगन सारे लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लोगन है हमारा तेलुगुज का। इसमें एनटी रामाराव थे उनके लीडर। तो उनका स्लोगन था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। तेलुगु देशम पार्टी थी आंध्र प्रदेश की। उन्होंने असेंबली इलेक्शन 1983 के असेंबली इलेक्शन में ये स्लोगन दिया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। ये स्लोगन किसने दिया था? लीडर कौन था पार्टी का? एनटी रामाराव। और पार्टी का नेम क्या था स्टूडेंट्स? तेलुगु देशम पार्टी। ये पार्टी किस स्टेट की है? आंध्र प्रदेश की। इसको ध्यान से लर्न करने अपने। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। कैंपेन भी हो गया, अब कैंडिडेट्स ने रैलीज निकालनी शुरू कर दी। अब जितनी भी रैलीज निकालते हैं उसमें थोड़ी करप्शन जरूर होती है, माल प्रैक्टिसेस होती है। तो इस ड्यूरिंग हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक कोड यूज़ किया और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सारी इंस्ट्रक्शन इशू कर दी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। सबको जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इक्वल चांस मिलना चाहिए जो इलेक्शंस है उसके लिए। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ स्टूडेंट्स हमारे इशू करते हैं ये हमारे प्लानिंग कमीशन, ठीक है, या फिर इलेक्शन के ड्यूरिंग जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, सारे काम इलेक्शन कमीशन ही करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। तो इलेक्शन कमीशन ने एक कोड यूज़ किया, एक लॉ पास किया, उसके अकॉर्डिंग हर पार्टी कैंडिडेट ने उसको फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स, कोई किसी से ब्राइब नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, किसी को धमकाएगा नहीं। देन नेक्स्ट हमारा जो रूल है दैट इज अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। कोई भी कैंडिडेट, स्टूडेंट ध्यान से देखो, ऊपर वाली लाइन के बिना नीचे वाली लाइन का मीनिंग नहीं बनेगा। नो कैंडिडेट कैन, कोई भी ये नहीं कर सकता, क्या क्या नहीं कर सकता? ब्राइब नहीं ले सकता, किसी रिलीजन का और कास्ट का नेम यूज करके उनसे वोट नहीं ले सकता। तीसरा, जो भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज नहीं कर सकती। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, उनको वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करेंगे। और इलेक्शन के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दी, 25 लाख इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा। जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं वो सिर्फ 25 लाख तक खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
और जो असेंबली इलेक्शन है उसमें 10 लाख। ये रूल पास किए हैं टू अवॉइड द करप्शन और माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। तो इसको हम कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। जब हमने कोड ऑफ कंडक्ट की बात करनी है तो इसमें ये मेंशन करना जरूरी है कि कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन पीरियड के ड्यूरिंग सबसे सुप्रीम लॉ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और इलेक्शन फॉर द इलेक्शन प्रोपेगेंडा। मीन्स हमारा कंट्री क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, सारे रिलीजन इसमें क्या है, इक्वल है। तो गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। इलेक्शन में गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, रिलीजियस प्लेसेस है, मंदिर है, गुरुद्वाराज है या और कोई रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे वो इलेक्शन पर्पस पे कोई मीटिंग रैली नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन से रूल इश्यू किए हमारे लिए। स्टूडेंट्स, हम ये सारे जितने भी मार्क किए हैं आपके लिए पॉइंट्स, इनको आपने अंडरलाइन करना है। कोड ऑफ कंडक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कोड ऑफ कंडक्ट में और कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो तो हम यूज़ करेंगे नहीं, लेकिन एक खास जो डिक्लेरेशन है उनके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग इलेक्शन, जब एक बार इलेक्शन अनाउंस होगी, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी मिनिस्टर दैट शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, किसी नए प्रोजेक्ट का नींव पत्थर नहीं रखेंगे। ओके, देन टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, कोई नया बड़ा पॉलिसी प्लान का डिसीजन नहीं करेंगे, कोई नया लॉ नहीं पास करेंगे। एंड एनी प्रोमिसेस जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए, वो कुछ ऐसा फेक प्रॉमिस या कोई भी प्रॉमिस वो नहीं करेंगे। तो ड्यूरिंग इलेक्शन वो कुछ नया फाउंडेशन, कोई नई बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी या नया कोई वर्क प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये हो गए हमारे कैंडिडेट्स के लिए जो शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं ये मैंने आपको यहाँ मार्क कर दी है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है जो इलेक्शन कमीशन यूज़ करता है। ये सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ है इलेक्शन में। इलेक्शन में जो हमारी गवर्नमेंट है उस टाइम गवर्नमेंट नया कानून नहीं बनाएगी, ऑल आर गोइंग टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। ये इसी लॉ को, इसी कोड को फॉलो करेंगे। तो उसके बाद हमारा चौथा स्टेप है पोलिंग। अब कैंपेन हो गया, कैंपेन में रैलीज होगी, उनको इंस्ट्रक्शंस मिल गई। अब उसके बाद है वोटिंग डे आ जाता है, इसको पोल डे भी बोलते हैं। ठीक है, द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन व्हेन द वोटर्स कास्ट देयर वोट, इसको पोल डे भी बोलते हैं। और इस दिन उस एरिया में या अगर पूरे कंट्री में लोकसभा में हो रही है तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे होती है, सो विद दैट पीपल कैन ईजिली कास्ट देयर वोट। तो नॉर्मली हम इसको पोल डे और इलेक्शन डे बोलते हैं। इस पोल डे में क्या करते हैं, वोटर्स अपने नियर बाय एरिया में पोलिंग बूथ पे जाते हैं। पोलिंग बूथ क्या है, एक प्लेस है यहाँ पे वोटर्स इजीली अपनी वोट डाल सकते हैं। ये एक पब्लिक प्लेस होगी। नॉर्मली ये क्या होगा, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस या कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, कोई रिलीजियस प्लेस नहीं होगा। ओके, मार्क दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। पोलिंग बूथ जो है हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे जहाँ पे वोटिंग होगी, या फिर हमारे स्कूल कॉलेज हो सकते हैं। नियर बाय एरिया में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं एंड वोटर्स अप्रोच टू द पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट्स। तो इसमें पोलिंग होगी। अब पोलिंग के बाद क्या होता है, इलेक्शंस की काउंटिंग होती है, वोट की काउंटिंग होती है, सॉरी, जितनी भी हमारी वोट्स हुई हैं उनकी काउंटिंग होगी। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये इनकी बड़ी स्क्रूटनी में, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में इसकी वोटिंग की काउंटिंग करते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि इतना काम जो हमने इलेक्शंस का किया है, इलेक्शंस में कैंपेन से लेके पोलिंग तक बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है? अगर हम इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कि 25 लाख लोकसभा में खर्च होना चाहिए, लोकसभा इलेक्शंस में, और 10 लाख जो है वो असेंबली इलेक्शन में। बट नॉर्मली वी इजीली कैन ऑब्जर्व द फैक्ट दैट इससे डबल ट्रिपल जो पार्टीज हैं वो खर्चा कर देती हैं। हमारी इसमें कुछ डाटाज हैं, इसकी कुछ एग्जांपल हैं। जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने नियर अबाउट 3500 करोड़ एक लोकसभा के, जो 2014 की लोकसभा इलेक्शन है उसमें खर्च कर दिया, 3500 करोड़। ओके, तो दैट वर्क्स अबाउट, मतलब 1% का अगर हम मान के चले 40% एक वोटर के ऊपर खर्च करते हैं, वोटर लिस्ट के ऊपर 1% के ऊपर। तो अगर हम रफली बोलें तो गवर्नमेंट ने किया
अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वाज अराउंड 30,000 करोड़ एंड 500 पर वोटर। मतलब अगर हम बात करें कि नियर अबाउट गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और एक पर्सन के ऊपर 500 रुपये खर्च कर दिए। ये हमारी रियलिटी है, जो हमारे डाटा बता रहे हैं हमें कि हमारी इलेक्शंस इतनी कॉस्टली है। एक्चुअली अगर इतनी मनी हम कंट्री के वेलफेयर में लगाएं तो उससे बहुत कुछ हम परचेज कर सकते हैं। ओके, जैसे ये एग्जांपल है, 2005 में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू बाय 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस कंट्री से न्यूक्लियर सबमरीन्स हमने जो वेपन्स और लॉन्च करने के लिए जो उनको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो लेने हैं। और ईच सबमरीन्स की कॉस्ट कितनी है, जो बड़े जहाज शिप होते हैं जहाँ से वो लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, उसकी कॉस्ट कितनी थी 3,000 करोड़। और हमने इलेक्शन में कितना खर्च किया 30,000 करोड़। सो ऑब्वियसली जितना हमने वहाँ खर्च किया इट शुड बी स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट। तो दिल्ली में जो हमने कॉमनवेल्थ गेम आयोजित की थी, होस्ट की थी 2010 में, उसका नियर अबाउट खर्चा जो था दैट इज 20,000 करोड़। और ये देखो अब इलेक्शन इससे कितनी कॉस्टली, मतलब जो कॉमन वेलफेयर प्लान्स हैं, कॉमन वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, गेम्स हैं, या फिर रिसर्च के रिलेटेड स्पेस में जाने के लिए, या फिर हमारी सिक्योरिटी को लेकर हम उसमें अपडेशन नहीं कर सकते, उस टाइम गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता, बट हमारी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होता है। तो इसमें एक एग्जांपल आपको और शो कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का पेज आपका, इलेक्शन रिजल्ट इन गुलबर्गा। गुलबर्गा में इलेक्शन जो हुई थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने पीपल, कितनी उसमें सीट्स थी, कितने कैंडिडेट थे, ये लिस्ट बनी हुई है। स्टूडेंट दिस लिस्ट इज कंपल्सरी फॉर 1 मार्क क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आपको ये पैरा आ सकता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पैराग्राफ यू हैव टू गिव द आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु हैड एक्चुअली कास्ट देयर वोट। टोटल कितने वोटर्स है, कितने लोगों ने अपनी वोट दी थी। तो जितने हम इनका टोटल करेंगे, ये इतने लोगों ने अपनी वोट दी। अगर परसेंट में है तो इन सब लोगों का टोटल, इन सब लोगों ने क्या दी, अपनी वोट दी। ओके, तो ये हमारी होगी एक एग्जाम्पल जो लोकसभा इलेक्शन की है, गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ये। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल इलेक्शंस में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, तो उनमें से हम उसको क्या निकाल लेते हैं, उनका टोटल पार्टिसिपेशन। अब लोग जो वोट करते हैं, कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं, वो किस यहाँ पे डालते हैं। पहले टाइम में हमें क्या था कि बैलेट पेपर मिलता था, बैलेट पेपर जिसके ऊपर स्टैंप है, तो उस बैलेट पेपर के उस शीट के ऊपर कैंडिडेट्स के नेम लिखे हुए हैं, जो जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनका सिंबल क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ बनी होती हैं। तो लोग उसके आगे अपना निशान लगा देते हैं कि ये इस पर्सन को वोट कर दिया। बट नाउअडेज हमारे पास आजकल क्या आ गई, हमारे पास ईवीएम आ गई। ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। आपने ये वर्ड सुना होगा स्टूडेंट्स, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं जो आजकल की डेट्स में। ये एक ऐसी मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जिसमें कैंडिडेट्स के नेम ऑलरेडी फीड होते हैं, सिंबल्स हैं स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, जिसको हमने वोट करनी है हम उसके आके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, डिफरेंट वेज हैं जिसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स अपनी वोट डालते हैं। तो उसके बाद ये जितने भी ईवीएम्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जहाँ से ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी करी थी वहाँ पे वोटिंग डालने के लिए पोलिंग बूथ भी बनाए गए थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वहाँ पे अगर बैलेट पेपर है, ये ईवीएम्स हैं, इलेक्शन के बाद पूरी सिक्योरिटी में उनको ले जाते हैं काउंटिंग करने के लिए, पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर ऑफिस में ले जाते हैं। तो इसके बाद जब काउंटिंग होती है तो मीडिया, टीवी, हमारे न्यूज़पेपर बहुत अलर्ट होते हैं, तरह तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स लोगों को अलर्ट भी करती हैं और मिसलीड भी कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नीचे चेक दिया हुआ है, अपने इसमें चेक में अपनी प्रोग्रेस चेक करने की, आपने कितना भी सुना, कितना समझा, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया कि इलेक्शन के ड्यूरिंग कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, ओके। तो आप इसमें टिक करना और अभी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना। मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ अ न्यू ट्रेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी अ वीक बिफोर पोलिंग। पोलिंग से एक वीक पहले क्या वो नई ट्रेन को फ्लैग, उसका नींव पत्थर रख सकता है, उसको दे सकता है, नई झंडी दे सकता है। तो इसको बताना यस और नो। सेकेंड है, कैंडिडेट प्रॉमिस दैट शी विल गेट अ न्यू ट्रेन फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी इफ शी इज इलेक्टेड।
ये तो जायज़ है, ये कर सकते हैं प्रॉमिस कि अगर वो कैंडिडेट इलेक्शंस में जीत गई तो वो उस कंस्टिट्यूंसी में नई ट्रेन उनके लिए लगवा देगी। ओके, तो फर्स्ट वाला तो इनवैलिड है, ये पोलिंग में 15 डेज तक कुछ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है तीसरा, सपोर्टर्स ऑफ द कैंडिडेट्स टेक द वोटर्स टू अ टेम्पल एंड टेक देम एंड मेक देम ओथ टू दैट दे विल सपोर्ट हिम इन द वोटिंग। तो ये भी रॉन्ग हो गया, किसी रिलीजियस प्लेस का सहारा नहीं ले सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर कैंडिडेट के सपोर्टर जो हैं तो लोगों को वहाँ ले जाएंगे, टेंपल में जाओ, वहाँ पे ओथ ले लो, कसम ले लो कि इसको वोट डालेंगे, तो ये गलत है। द सपोर्टर्स ऑफ कैंडिडेट शुड दे शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी टाइप ऑफ गिफ्ट, जैसे लोग आजकल ऐसे करते हैं कि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस्लाम एरिया में जाते हैं, तो ये भी एक्चुअली गलत है। लोग ऐसा करते जरूर है हमारे कंट्री में, बट इट्स नॉट अलाउड टू गिव द गिफ्ट्स टू टेक देयर सपोर्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में जितनी भी हमने इलेक्शन पढ़ी है चाहे वो असेंबली इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, या फिर लोकल लेवल पे पंचायत इलेक्शन है, म्यूनसिपल इलेक्शन है, हर इलेक्शन में ये देखना जरूरी है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे में होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी व्हाट मेक्स अ इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ओके, अगर हम देखें न्यूज़पेपर में तो बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि अनफेयर मेथड है। तो ऐसी कुछ कंडीशन है, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। कई बार देखने में क्या आता है कि वोटर लिस्ट में से जो आम लोगों के जेन्युइन नेम है, जो डिजर्व करते हैं, उनका नेम निकाल के फेक नेम डाल देते हैं ताकि उनकी वोट वो ले सकें। दूसरा, गवर्नमेंट की मशीनरी को, गवर्नमेंट की फैसिलिटी को वो जो ऑफिसर्स हैं उसको मिसयूज़ करते हैं। एक्सेसिव यूज़, गवर्नमेंट ने जितना मनी फिक्स किया है उसके लिए इलेक्शन के लिए, उससे अलावा दे स्पेंड द ओवर मनी। ओके, ओवर एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद जितने भी वोटर्स हैं ज़्यादातर रिगिंग होती है, मतलब माल प्रैक्टिस। रिगिंग यहाँ पे एक वर्ड है, आपको ये 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। रिगिंग माल प्रैक्टिस होती है पोलिंग डे में, जैसे बूथ कैप्चरिंग कर दी, उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, लाइक दिस। तो इसके लिए सारे हमारे इलेक्शन कमीशन ने ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन, जो कि इलेक्शन की सुप्रीम ड्यूटी निभाता है, मेन इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शन हेल्ड करता है, उसके लिए उसने इंडिपेंडेंट इलेक्शन अनाउंस किया। तो पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन, ये हमारा स्टूडेंट 5 मार्क्स का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन। आप सिर्फ ध्यान से सुनो, you also can write the same thing in the exam. Election Commission is an independent commission who is responsible to hold the free and fair election at the रेगुलर इंटरवल, जिसका काम है फ्री और फेयर इलेक्शन हेल्ड करना और प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कि हमारा 5 ईयर का टाइम है, प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस को हेल्ड करना उसकी ड्यूटी है। अब उसने इलेक्शन कैसे करनी है, तो कुछ रूल्स बनाते हैं। तो रूल बनाने के लिए पहले देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में होता कौन कौन। इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन, मतलब उसकी बनावट, उसमें कितने मेंबर हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर है, जिसमें हेड है इलेक्शन कमिश्नर CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जब वो अपॉइंट हो गया तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट को आंसरेबल नहीं है, वो किसी गवर्नमेंट के नेता या किसी बड़े मिनिस्टर को आंसरेबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट काम करेगा। ओके, चाहे रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट की वो चीज़ उसे लाइक करे या ना करे, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है जब अपॉइंट हो गया उसके बाद उसने किसी गवर्नमेंट के लीडर मिनिस्टर की फेवर नहीं करनी। ओके, तो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब ये नहीं कि गवर्नमेंट का कहना नहीं माना तो मिनिस्टर ने उसको हटा दिया, लो, उसको रिमूव करना नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। ओके, तो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर है वर्ल्ड में पूरे रेंजेस में जिनके पास बहुत पावर्स है। इंडिया उसमें से एक है कि हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और ये बहुत पावरफुल है। इलेक्शन के ड्यूरिंग जो भी ये कोड, जो भी लॉ इशू करता है, इंस्ट्रक्शन इशू करता है, गवर्नमेंट को माननी पड़ती है। ओके,
ये होगी इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो उसकी हेल्प के लिए कमिश्नर भी होते हैं। ये स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमिश्नर सेपरेट होगा। जो मेन हमारा इलेक्शन कमिश्नर है यूनियन लेवल पे, उसके अंडर काम करता है। तो देखते हैं ये कौन कौन से हैं। ईसी क्या काम करता है इलेक्शन कमीशन, ये आपका मेन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये वाला इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन से वर्क करता है, आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये मैं तो हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन टेक्स मेजर डिसीजन, जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड, कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, अनाउंसमेंट से रिलेटेड, इलेक्शन की रिजल्ट से रिलेटेड जितने डिसीजन है वो कौन लेता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है। उसके बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट देता है, जो हमने पहले पढ़ा है कि कैंडिडेट्स ने कैसे काम करना है। अगर कोई इस कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानेगा तो उसको क्या हो जाएगा, पनिशमेंट दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन के मेजर वर्क हो गए, एक तो इलेक्शन हेल्ड करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे, और सारे डिसीजन लेते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, अनाउंसमेंट से लेके उसकी पोलिंग तक, उसकी काउंटिंग तक, रिजल्ट की डिक्लेरेशन तक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है, इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है, नो, इट इम्प्लीमेंट्स, उसको लागू भी करता है, और जो उसको नहीं करता, फॉलो नहीं करता, वायलेट करता है, उसको पनिश भी करता है। तो नेक्स्ट इसका वर्क देखते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस। अब इलेक्शन के ड्यूरिंग गवर्नमेंट की बात नहीं चलती, किसकी चलती है, इलेक्शन कमीशन की चलती है। वो गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दे सकते हैं कि इस चीज़ को फॉलो किया जाए। तो ये होगी इसकी इम्पॉर्टेंट वर्क, इलेक्शन में गवर्नमेंट से भी ये ऊपर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आपने सेम इसको लर्न करना है, और अगर आप चाहो तो इसी में से आंसर आप कॉपी में से नोट कर सकते हो। ओके। तो उसके बाद जब कोई इलेक्शन, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट अंडर द गवर्नमेंट, मतलब जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इलेक्शन के ड्यूरिंग वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करेंगे, वो किसके अंडर वर्क करेंगे, इलेक्शन कमीशन के अंडर वर्क करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये हमारी पावर भी कह सकते हैं, ये वर्क भी कह सकते हैं। तो पिछले 25 ईयर से हम देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड, इन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया। इलेक्शन जितनी भी हुई हैं इंडिपेंडेंट हुई हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस करवाते हैं बहुत सक्सेसफुल इलेक्शन करवाते हैं। थोड़े एक आधा जगह पे कोई मिस हैपनिंग या कोई ऐसा हो सकता है कि इसने वायलेशन की हो, लेकिन अदरवाइज इलेक्शन कमीशन अपना वर्क पूरी तरह से सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ये इलेक्शन कमीशन के जो कुछ काम है, इसमें से आपने चूज करने के क्या क्या वर्क कर सकते हैं। ये आपका खुद का होमवर्क है। लेटर ऑन अगर आपको नहीं भी आएगा तो आई विल गिव द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, बट वंस यू ट्राई इट। अभी जो हमने रीड किया, इलेक्शन कमीशन देख सकते हैं, कहाँ विजिट कर सकते हैं, किसको क्या ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स में नॉर्मली आ जाता है, और ये वैल्यू बेस पे भी आ सकता है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन होते हैं कि हमारी इलेक्शन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द पीपल ओनली। अगर पीपल ही उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें तो हमारी इलेक्शन का कोई यूज़ नहीं रह जाता। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो पीपल की पार्टिसिपेशन है वो कैसे देखते हैं। नॉर्मली जितने एलिजिबल हैं, जितने एलिजिबल पीपल हैं, जायज़ हैं, एलिजिबल भी हैं, एलिजिबल भी हैं, एलिजिबल भी हैं, तो मतलब जो योग्य और जायज़ वोटर है उनमें से कितने लोग वोट करने हैं। फॉर एग्जांपल एक एरिया में 15 लोग हैं जिनको वोटिंग राइट मिला हुआ है और एलिजिबल भी हैं और वो जायज़ हैं, कोई उनके अगेंस्ट केस नहीं है, तो वो लोग वोट करने गए, उनमें से कितने लोग वोट करने नहीं गए। तो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसको बोलते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन। सी हियर, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन। इसको हम शॉर्ट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं, टर्न आउट फिगर। टोटल टर्न आउट फिगर कितना है, मतलब कितने वोटर्स ने अपना वोट दिया, ये इसको बोलते हैं टर्न आउट फिगर। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंपैरिजन आपको शो कर रहे हैं एक ग्राफ के थ्रू। ये देखो, तो इसमें क्या है, यूके इंग्लैंड का और इंडिया का कंपैरिजन किया है। इंग्लैंड में हम देख रहे हैं पहले 80 तक जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी, बट अब वो कम हो रही है। 1991 के बाद ये देखो इन ईयर्स में ये कम हो रही है, बहुत डाउन आ गई, फिर थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर चली गई। मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन क्या होगी, पहले एकदम से सडनली पीपल
डिनाइड द पॉलिटिक्स, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वोट डालने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में देख रहे हैं 1991 का फिगर जैसे 56 है, उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, बट अब ये क्या है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये स्लाइटली थोड़ा ऊपर जा रहा है लास्ट के कुछ ईयर्स। इट मीन्स इंडिया में जो टर्न आउट है वो इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट स्टेबल भी नहीं है, वो ये भी नहीं है कि डाउनफॉल भी नहीं जा रहा है। तो हमारे इंडिया में अब लोग इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं, इसके रीज़न है वाई द टर्न आउट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड। एक तो हमारे कंट्री के लोग पुअर है, इलिटरेट है, अनप्रिविलेज्ड है, उनको जब वोटिंग का चांस मिलता है तो वो अपने आप को कंपेयर करते हैं विद द रिच पीपल, कि उनकी वैल्यू भी रिच पीपल की तरह ही है। दे कंपेयर देमसेल्फ विद द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। ओके, तो लोग बड़ी खुशी से वोट डालने जाते हैं, ये इंडिया का फिगर है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि इलेक्शन में जो उनसे रिलेटेड कुछ इशू है, एक्टिविटीज़ है, वो इलेक्शन में ही पूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये 2004 के इलेक्शंस में ये डाटा सामने आया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सामने आते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि उनकी जो डिमांड्स है, उनकी मांग है, उनके जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इलेक्शंस में ही पूरी हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। और कुछ लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं दैट दे आर हैविंग द राइट टू वोट, उनको एक मौका मिला है अपने कंट्री की गवर्नमेंट बनाने का, तो वो बड़ी खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स हमारे लोगों में जो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की जो विलिंग है, फीलिंग है, वो ज़्यादा है। कॉमन पीपल तो वैसे भी बहुत सारी डिफरेंट पार्टी से अटैच होती है, कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये हमारा नोन है, ये हमारी एरिया की पार्टी है, लाइक दिस। तो लोग अपने एरिया की या रीजनल पार्टी से या किसी कैंडिडेट की पर्सनालिटी से बहुत अटैच होते हैं, सो दे फील प्राउड, दे फील हैप्पीली कास्ट द वोट। तो इससे भी हमारी टर्नआउट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो थे फिगर हमारी टर्नआउट के। अब देखते हैं कि इलेक्शंस के जो आउटकम्स आते हैं, आउटकम्स होते हैं रिजल्ट। जो इलेक्शन में आउटकम आते हैं क्या लोग उनको विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहली बात आप समझ लें, इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो सपोज, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जो पावरफुल लोग हैं वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे और जो कॉमन पीपल है वो लूज़ कर जाएंगे इलेक्शन में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, लोग जिसको वोट डालते हैं नॉर्मली वही रूलिंग पार्टी इलेक्शन के बाद अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो एक तरह का लोगों में ये कॉन्फिडेंस बना हुआ है कि लोग जिसको वोट करेंगे उनकी वोट की वैल्यू होगी। तो दूसरा एक और इशू सामने आता है इनकम्बेंट का। इनकम्बेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, ये वो लोग होते हैं, एमएलएज होते हैं, जो बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, जो परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सिटिंग, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे जमे हुए हैं पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं, वोट्स को बाय भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, खरीदते भी हैं, और उनके क्रिमिनल के साथ इलेक्शंस भी हैं। तो इस वे से अगर देखा जाए तो ये तो अनफेयर मीन्स है। अगर अनफेयर मीन्स वाले ही जीतते तो नॉर्मल पर्सन, जो कॉमन पर्सन है, वो कभी आगे ही ना आते। लेकिन हमारे जो कंट्री में जितने भी इलेक्शंस के ये हमने रिजल्ट्स देखे हैं, उनके आउटकम्स देखे हैं, उनमें वही पीपल, न्यू पीपल, कई बार जरूरी नहीं कि पुराने बंदे ही हमेशा गवर्नमेंट में आ रहे हैं, नई पार्टीज़ को भी मौका मिल रहा है। इससे हमें प्रूफ मिल जाता है कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं फ्री एंड फेयर है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट आते हैं एज इट इज़ उनको एक्सेप्ट करते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम देखते हैं ये बहुत गुड जो मैटर्स हैं या गुड फीचर्स हैं इलेक्शंस के, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल या इलेक्शन कमीशन की बहुत अच्छे से बनाए हुए प्रोसीजर हैं, जो हमें दिखाते हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखने में आया है कि बेसिकली इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के बावजूद बहुत सारी माल प्रैक्टिस होती हैं, बहुत सारी रिगिंग्स होती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, बुलिंग की आती है, बूथ कैप्चरिंग की आती है। तो ये सारे क्या हो गए, अनफेयर मीन्स। अब कौन कौन से अनफेयर मीन्स है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जितने भी अनफेयर मीन्स है हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या है, ये एक तरह का चैलेंज है। सो आपका 5 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो सबसे पहला चैलेंज आप देख सकते हो, ये मैंने ऊपर पिक्चर दिखाई थी, मनी, पीपल मिसयूज द मनी।
जिनके पास ब्लैक मनी है, जो ओवर स्पेंडिंग करते हैं। दूसरा हमारी इलेक्शन का ये फिगर आप देख रहे हो, इसमें एक लीडर है तो ये स्पीच दे रहे हैं, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, मतलब वो पावर में है। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, दिस पर्सन इज सीन हियर, ये बीजेपी पार्टी है, देख सकते हैं इसके सिंबल यहाँ पड़े हुए हैं और डिफरेंट और भी सिंबल्स पड़े हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। तो मीन्स हर टाइम ये इनकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। अगर आज एक पावर में है तो टुमारो दैट कैन बी अंडर द पावर और एनी अदर पर्सन कैन टेक इट्स प्लेस, कोई दूसरा पावरफुल प्लेस ले सकता है। तो इट मीन्स हमारी पार्टी में, हमारी पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी है। ओके, तो कैंडिडेट जितने भी हैं मिसयूज़ करते हैं, मनी का मिसयूज़ करते हैं, एक दूसरे को डाउन करते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो कई कैंडिडेट्स के क्या हैं, क्रिमिनल के साथ कनेक्शंस हैं। मैंने देखो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट आपको हाईलाइट करके दिए हैं। यू हैव टू राइट और लर्न एज इट इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी। तो कई कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो डोमिनेट करती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको लगता है कि ये पार्टी टिकट्स उनका ही राइट है, उनकी फैमिली का राइट्स है, वो एक ही फैमिली में टिकट्स देते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी दे देते हैं। तो बहुत कम लोगों के पास कई बार चॉइस रह जाती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जो इलेक्शन एजेंडा है वो सेम ही लगता है। तो लोगों को समझ नहीं आता, वो मिसलीड हो जाते हैं कि किसको वोट डालें। एक्चुअली इट सीम्स ऑल सीम्स वेरी इक्वल, सबके एक ही तरह के प्रोमिसेस होते हैं, वो सर्विस देंगे या फिर वो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड लोगों को कुछ नई फैसिलिटीज़ देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, कोई चीज़ों की जो रेट्स हैं उसको रिड्यूस कर देंगे वगैरह। ये सारे एक तरह के प्रोमिसेस होते हैं। सो पीपल आर कन्फ्यूज्ड टू होम दे शुड कास्ट द वोट। ये हो गए हमारे चैलेंजेस। नाउ स्टूडेंट सी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, आपकी ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ नॉर्म्स गाइडलाइंस दैट इज इशू बाय द इलेक्शन कमिश्नर। तो इस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग भी सारे वर्क करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, वोटिंग के ड्यूरिंग, तो वो पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जितने उनके पास नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसी अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एरिया को उतने नंबर में डिवाइड कर देते हैं। इनकम्बेंट होते हैं, जैसे करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल ऑफिस में जो जमे हुए लीडर्स हैं, पुराने एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं। ओके, लेवल प्लेइंग फील्ड, कंडीशंस होती है लेवल प्लेइंग फील्ड में, कोई कितना पैसा लगा रहा है, तो किस लेवल तक खेल रहा है, क्लियर, वो किस लेवल तक वोटर्स को अपील कर रहा है। रिगिंग एक फ्रॉड है, एक माल प्रैक्टिसेस है, मतलब जैसे बूथ कैप्चरिंग कर ली, बैलेट बॉक्स में हेरा फेरी कर दी, ये सारे क्या हो गए रिगिंग में। टर्न आउट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, टर्न आउट एक टोटल नंबर ऑफ परसेंट है, एलिजिबल वोटर्स रही दोज हु हैव कास्ट द वोट। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर नंबर 3, the second portion of the chapter we have completed in this video. So again I suggest you to watch the video again and again, and don't forget to subscribe and save the video, क्योंकि फर्दर इन फ्यूचर जब आपको लगेगा कि दोबारा से आपने ये क्वेश्चन सुनना है तो आप अपनी वीडियो को बड़ी इजीली अपनी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट स्टे फिट एंड फाइन, स्टे सेफ, गुड बाय स्टूडेंट्स।